Welcome back, dear students. After the completion of the pollination, we were actually discussing pre-fertilization events wherein we have discussed stamens, we have discussed pistil, we have also done with pollination. Now in this session we'll be discussing about pollen-pistil interactions. Now what do you mean by pollen-pistil interactions? This is something that we want to know in this session. And what are the things or the events that are occurring during this, during this interaction, what I call as pollen-pistil interaction. Dear students, you know that when in pollination we saw that there were actually transfer of pollen grains, pollens we are getting transferred from stamens to, on the stigma, which is the female part of the flower. Now, after that, there will be the interaction between pollen and the stigma of pistil, and that's what we call as pollen-pistil interaction. So, I will be writing over here that pollen-pistil interaction का क्या मतलब sir? All the events that occur after fertilization, that occur after pollination till the entry of pollen tube into ovule, or I can say till the release of male gametes. It's called as pollen-pistil interaction. So I have discussed this, all the events that occur after pollination till the entry of pollen tube in ovule, or I can say till the gametes are released, or I can say till the gametes are released, male gametes, right? Male gametes are released, constitute pollen-pistil interaction. Pollen-pistil interaction. So what we know from pollen-pistil interaction, we know that all the events that occur after pollination till the entry of pollen tube inside ovule or till the release of male gametes is known as what I call as pollen-pistil interaction. Now in this pollen-pistil interaction, we want to know that what are the events that occur during pollen-pistil interaction. So next we will be discussing that the events that occur during pollen-pistil interaction. So we are having here the events. In events we have write down the first event, which is pollen on stigma. Right, we have different events over there. One is that pollen जब stigma पे आ जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, फिर जब पोलन जो होगा, फिर पोलन क्या करेगा, फिर पोलन की ग्रोथ होगी, राइट, फिर पोलन ट्यूब बन जाएगा. ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. सो फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज दैट बड़े जब यहां पे एक स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के आके पोलन लैंड हो जाएगा. ठीक, अब इस पोलन का क्या है, पोलन ऑन स्टिग्मा. जब पोलन स्टिग्मा पे पड़ जाएगा, दो कंडीशंस होती है. पोलन ऑन स्टिग्मा क्रिएट्स टू थिंग्स. One is that either this pollen on stigma, it will be accepted or it will be rejected. Isn't it so? So what is being done when the pollen falls on the stigma? ये stigma क्या करता है, ये scan करता है. It will scan this pollen, और ये चीज को देखना चाहता है कि जो पोलन है क्या ये मेरी अपनी स्पीशीज का है, राइट, और ये किसी डिफरेंट स्पीशीज का है. अगर अपने स्पीशीज का है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर दूसरी स्पीशीज का है तो रिजेक्ट करेगा. इजंट इट सो? सो बेसिकली क्या है, सो हम कहेंगे दो कंडीशंस है सर, ईदर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. अब एक्सेप्ट कौन होता है सर? एक्सेप्ट वो होता है जो इसको अपनी स्पीशीज का दिखेगा. दूसरा सर उसमें यह होना चाहिए, वो कॉम्पिटेबल होना चाहिए, यानी वो वहां पे फिर जर्मिनेट करना चाहिए.
Isn't it so? So what are the two things which are necessary, or I can say what are the pollens which would be accepted over here? Sir, the pollens that are accepted by the stigma, they should be having this condition that they should belong to the same species. Number second, it should be compatible as well. And what about those which will be rejected? Yes, sir, जो reject किए जाएंगे, सर उनका क्या? सर वो तो या तो वो different species के होंगे, डिफरेंट स्पीशीज के पोलन्स होंगे, क्योंकि तब जाके वो उनके रिसेप्टर्स वहां पे नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल, यानी ये भी रिजेक्ट होता है, इसको भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आई मीन, और आई कैन से दैट इसकी भी ग्रोथ नहीं होगी, ये भी जर्मिनेट नहीं होगा, ये वाला पोलन जो यहां पे पड़ेगा। तो क्या कहा सर, जो पोलन यहां पे आया स्टिग्मा पे, सर उसके बाद हम देखते हैं वहां पे दो कंडीशंस होती है, दो ऑप्शंस होते हैं। या तो ये पोलन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, आई मीन स्टिग्मा विल एक्सेप्ट दिस पोलन, और अगर इसने एक्सेप्ट किया इस पोलन को, बेटे उसका ये मतलब है कि पोलन जो है अब वो जाके पोलन ट्यूब बनाएगा, मींस दैट इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोलन विल नॉट जर्मिनेट योर ट्यूब. Isn't it so? Now we saw that which type of gametes, I mean which type of pollens will be accepted and which type of pollens will be rejected. Basically क्या होता है जब pollen stigma पे आता है, there happens that chemical dialogue between this pollen and pistil. Isn't that chemical dialogue between these two things actually decides whether the pollen will be accepted or it will be rejected. So what happens, this is actually the chemical dialogue happens over there. NCERT ऐसे लिखता है, chemical dialogue which decides whether the pollen will be accepted or it will be rejected. Is that clear? So this is about pollen on stigma. जब pollen stigma पे आएगा, उसके बाद बेटे क्या होगा सर, यहां पे आ जाए सर, इस चीज को हम देखेंगे बेटे, ये मानो कि ये पोलन है, ठीक, ये बाहर से इसका एक्सिन में बनाता हूं, राइट, इंटीन, सॉरी इंटीन, और बाहर से ये हो गया मानो कि एक्साइन, एक्साइन यहां है, ठीक ठीक ठीक। नाउ दिस इज ए जेरुम पोर, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, ये जो है ये पोलन, आई मीन ये जो पोलन है यहां पे, ये पोलन जो स्टिग्मा पे बैठ गया, ये एब्सॉर्ब करेगा, पोलन ऑन स्टिग्मा एब्सॉर्ब फूड, मॉइस्चर, right, as well as there will be the boron as well, which is essential for its growth. So यहां पे क्या होएगा, पोलन जो है absorb food, moisture on stigma, right? जब ये फूड एब्सॉर्ब करेगा, यहां से फूड इसमें चला जाएगा या मॉइस्चर इसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे पोलन जो है इसके अंदर दो सेल्स है ना, एक तो ये जेनरेटिव सेल हो और दूसरा ये वेजिटेटिव सेल, जिसकी वजह से अब क्या है, जो पोलन है इसका जो साइज है ये एनलार्ज हो जाएगा। Isn't it so? क्यों? क्योंकि इसने फूड और मॉइस्चर जो है वहां पे स्टिग्मा पे उस चीज को एब्सॉर्ब किया बेटे, और जब ये उस चीज को एब्सॉर्ब करता है, आपने देखा सर इसका साइज बढ़ जाएगा। जब इसका साइज बढ़ जाएगा बेटे, इंटीन जो है जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगा, यानी इस कदर, आई मीन इट विल बी लाइक दिस दैट, अब ये यहां, आई मीन यस, ये यहां ऐसे करके आएगा बेटे बाहर, इट विल प्रोट्रूड आउटसाइड। क्यों 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 ये प्रोट्रूड हो जाएगा सर, बेसिकली जो इसने फूड वहां से एब्सॉर्ब किया उसकी वजह से अब जो ये है इंटीन, इट विल कम आउट। वेट अ बिट, आई एम गोइंग टू रब इट, सी हाउ इज द केस। द केस इज लाइक दैट कि अब जब पोलन यहां पे आ जाएगा बच्चे, राइट, मानो कि इंटीन इसका, ये मानो कि यहां से बाहर आ रहा है, आई मीन ये यहां से बाहर आ रहा है, ठीक, बाहर से इसको है ये
quote. Right? So this is inside this generative cell and it is this vegetative cell over here. Say this is the structure. What happens now? इसने absorb किया इस nutrition को जिसकी वजह से pollen tube बाहर आ गया. Is that clear? अगर पोलन ट्यूब बाहर आ गया, आप क्या करेगा पोलन ट्यूब? आप ये क्रॉस करेगा स्टिग्मा को, ठीक? ये यहां से पैक्टिनेस रिलीज करेगा. क्या? ये पैक्टिनेस रिलीज करेगा यहां से. इट विल रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज पैक्टिनेस. पैक्टिनेस से क्या होगा? जो इस स्टिग्मा में सेल्स है ये उसको क्रॉस कर लेगा. आई मीन पोलन ट्यूब का टिप जो है बेटे पैक्टिनेस से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो स्टिग्मा की जो सेल्स है ये उनको फाड़ देगा और नीचे यहां की आने की कोशिश करेगा. इज दैट क्लियर? और जो ही जो ये यहां पे पोलन ट्यूब बना, जो ही इसने स्टिग्मा को क्रॉस किया, अब ये एंटर होगा किसमें? स्टाइल में. किसमें होगा? सर ये स्टाइल में एंटर होगा. और स्टाइल में जब ये एंटर होगा, उससे पहले मैं आपको बताते जाऊं कि यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले पोलन की ग्रोथ हो जाएगी और ये किस में अब आएगा? स्टाइल में आएगा. ठीक? यानी द केस वुड बी लाइक दिस नाउ. Isn't this is the growth, right? I mean this is actually the generative cell. I mean tube cell का न्यूक्लियस यहां, sorry, I mean देख लीजिए आप. Now the case will be like this, that would be having this tube over here, और इस ट्यूब में बेटे एक तो ये टिप पे आएगा न्यूक्लियस किसका? वेजिटेटिव सेल का, और साथ ही साथ इसमें ये आएगी जेनरेटिव सेल. ठीक? जेनरेटिव सेल मैं इसको इस चीज से दिखाऊंगा, ब्लैक से. जनरेटिव सेल मानो ये है. ठीक? ये कहां से गुजर रहा है? आप स्टाइल से, और इसकी ग्रोथ हो रही है. ठीक? और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक बोरान और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है. दूसरा टेम्परेचर इसको चाहिए 20 से 30 डिग्री. और अगर आप देखोगे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किस में पाया जाता है? आप कहोगे मेज में. ये केस तब है जब आप बात करोगे स्टाइल जो कि हॉलो है, यानी स्टाइल अंदर से हॉलो है और पोलन ट्यूब अंदर आ गया. इज दैट क्लियर? यानी स्टाइल जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है और पोलन ट्यूब अंदर आ गया. इज दैट क्लियर? और अगर बेटे यहां पे सॉलिड ट्यूब है, आई मीन सॉलिड स्टाइल अगर होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट्स का, नीट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है बेटे. क्या कहा कि जो पोलन ट्यूब है इसकी ग्रोथ होती है स्टाइल के थ्रू, हॉलो स्टाइल के थ्रू, किसमें? मोनोकॉट्स में. लेकिन अगर आप बात करोगे बेटे डाइकॉट्स का केस अगर आप लोगे, तो डाइकॉट्स में क्या होता है? जो पोलन ट्यूब होता है वो पास होता है एक टिश्यू के थ्रू, जिसको हमने कहा बेटे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू. यानी जो सेल्स यहां पे होगी सॉलिड स्टाइल. हां, ये क्या है? दिस इज अ सॉलिड स्टाइल. सॉलिड स्टाइल ये किन में होता है बेटे? ये डाइकॉट्स में होता है. आस्क्ड क्वेश्चन है नीट 2015 में, इसका क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे. ठीक? क्या कि जो यहां पे स्टाइल है ये सॉलिड स्टाइल है, और ये सॉलिड स्टाइल किन का फीचर है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स, जो कि नीट 2015 में पाया गया था. अगर यहां पे देखोगे यहां पे हॉलो स्टाइल है, यानी यहां पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी. इजंट? यानी पोलन ट्यूब आया अपना, इसका जो ये वाला न्यूक्लियस है अपना वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वो यहां इंसर्ट किया, और उसके बाद जनरेटिव सेल यहां आएगी. राइट? और जब जनरेटिव सेल वहां आएगी, वहां पे वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाएंगे. अगर इसने पहले गैमेट नहीं बनाए होंगे, ये केस तब है जब पोलन दो सेल स्टेज में था. मैंने बोल दिया था 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं 2 सेल स्टेज में, और 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं 3 सेल स्टेज में. और पोलन ग्रेन्स जो 3 सेल स्टेज पे होते हैं, उनके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, और दूसरा
दूसरा दो मेल गैमेट्स जो कि बने हुए होते हैं जब जेनरेटिव सेल ने डिवाइड किया होता है। लेकिन यहां पे जो केस है ये 2 सेल स्टेज वाला केस है, ठीक। और यहां पे आपने देखा पोलन की ट्यूब पहले इसने एब्जॉर्ब किया फूड, फिर इसकी ग्रोथ हुई, स्टिग्मा को क्रॉस किया, रिलीज किया पैक्टिनेस एंजाइम, राइट। उस पैक्टिनेस की वजह से इसने स्टिग्मा को क्रॉस किया, फिर स्टाइल पे आया, स्टाइल हॉलो है तो इसके लिए आसानी हुई नीचे घुसना, ठीक। अंदर घुसा और फिर यहां पे सॉलिड स्टाइल की बात की। अगर सॉलिड स्टाइल होगा तब जाके जो पोलन ट्यूब है ये एंटर होता है स्टाइल के थ्रू दिस टिश्यू व्हाट आई कॉल एज ट्रांसमिशन टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू सेल्स के दरमियान गैप होती है और वहीं से ये पोलन ट्यूब एंटर होता है फिर स्टाइल में। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेटली आप देखोगे अगर यहां पे बेटे, अगर मैं यहां पे इसको ड्रा करूं, अब क्या होगा केस? नाउ हाउ द केस वुड बी ओवर देयर। अगर यहां पे हम इसको ड्रा कर लेंगे, यानी आप देखोगे बेटे यू वुड बी हैविंग दिस थिंग दैट यहां पे जो पोलन है इसने गैमेट ऐसा, यानी ये पोलन ट्यूब बना, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस और जो मेल गैमेट इसमें था, दिस जेनरेटिव सेल जो थी बेटे, जेनरेटिव सेल, वो जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स बनाएगी, 1 मेल गैमेट एंड 2 मेल गैमेट्स, राइट। अब क्या है? अब केस ये है। इज दैट क्लियर? सो कहां से कहां हुआ? पोलन अब एंटर कर रहा है, स्टिग्मा को क्रॉस किया, स्टाइल को क्रॉस किया, अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पड़ा हुआ है, इस ओव्यूल के अंदर इसको बेटे जाना है, इस ओव्यूल के अंदर जाना है इसको। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट इवेंट लेंगे कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, राइट। नाउ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब को कहां घुसना है? ओव्यूल में अंदर, ओव्यूल के अंदर घुसना है, ठीक। यानी उसका मतलब ऐसा केस है कि पोलन ट्यूब ऐसा था, अब ये आएगा और इसको कहां घुसना है? एंट्री पोलन ओव्यूल में। अब पोलन ट्यूब को जब एंटर होना होगा ओव्यूल में, इसके पास 2 मेल गैमेट्स, अब इसके लिए चांसेस है ये कहां से जाए। यानी पोलन ट्यूब व्हेन एंटर्स इनटू ओव्यूल इट कैन एंटर ईदर थ्रू माइक्रोपाइल, या तो माइक्रोपाइल के थ्रू ये घुस जाएगा इसके अंदर, ठीक। या तो बेटे ये एंटर होगा थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, या तो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जाएगा, यानी पोलन ट्यूब यहां इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जाएगा, यहां घुस जाएगा, या तो ये यहां से घुस जाएगा, सॉरी, हाँ, या तो पोलन ट्यूब यहां से माइक्रोपाइल से जाएगा, उसको हम कहेंगे पोरोगैमी, ठीक। या तो बेटे ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर हो जाएगा इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू ओव्यूल में, तो उसको हम कहेंगे मीजोगैमी, राइट। या तो ये पोलन ट्यूब एंटर होगा ओव्यूल में थ्रू दिस क्लाजा, जो कि अपोजिट होता है माइक्रोपाइल के थ्रू बेटे, तब जाके उसको क्लाजोगैमी बोलेंगे, थ्रू क्लाजा, एंड वी कॉल दैट कंडीशन एज क्लाजोगैमी। So what I'm discussing is that entry of pollen tube into ovule or inside ovule. So where we have started, we started that pollen has fallen on the stigma, pollen की growth हुई, उसके बाद pollen tube प्रोट्रूड हुआ, उसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, ग्रोथ के लिए क्या कंडीशंस है बोल दिया, बोरान, टेम्परेचर कितना चाहिए, इज दैट ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद पोलन ट्यूब की एंट्री हुई, इसने पास करना चाहा स्टाइल को, स्टाइल में 2 टाइप्स, हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल। हॉलो स्टाइल मोनोकॉट्स में, सॉलिड स्टाइल डाइकॉट्स का कैरेक्टर फीचर, ठीक। अगर सॉलिड स्टाइल है तो फिर ये कैसे घुसेगा? थ्रू ट्रांसमिशन टिश्यू, बोल दिया, क्वेश्चन आस्क्ड है उसका, ठीक। उसके बाद हमने कहा स्टाइल को पास किया और अब कहां जाना है इसको? ओव्यूल में। ओव्यूल में जब ये जाएगा इसके लिए 3 कंडीशंस, या तो ओव्यूल में जाएगा पोर के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, या तो जाएगा क्लाजा के थ्रू, या तो जाएगा इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। थ्रू दीज 3 थिंग्स द पोलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड व्हाट आई कॉल एज ओव्यूल।
अब बच्चे जब ओव्यूल के थ्रू एंटर चला जाता है, अब क्या है, अब पोलन ट्यूब एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, इजंट इट सो? अब पोलन ट्यूब को क्या करना है, अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में क्या करेगा, अपने दो मेल गैमेट्स जो है इसके पास, उनको डाल देगा किसी एक सिनर्जिड में, ठीक? सो नेक्स्ट विल बी entry of pollen tube in embryo sac. The case is like this now. यानी अब एम्ब्रियो से अगर पोलन ट्यूब ये है बेटे, अब ये डाल दिया इसने, मानो कि इसके पास एक गैमेट्स है, ये दो गैमेट्स है, ठीक? मानो कि यहां पे एम्ब्रियो सैक हम बना रहे हैं, ठीक? वी आर सेइंग लाइक दैट, एंड नाउ वी आर हैविंग दिस केस लाइक दिस, wherein we say that we have this embryo sac now over here, right? I say like this, I say the cases like this, और जो ही आप देखोगे यहां पे तीन सेल्स आ जाएंगे बेटे, एक तो ये सेल, दूसरा ये सेल, I mean there will be one more type of cell and then there will be also one type of cell. Now अब ये गैमेट आ जाएंगे, दोनों गैमेट्स जो है ये रिलीज होंगे किस में, एक सिनर्जिड में, किस में, यानी ये वाला भी इस सिनर्जिड में आएगा, ये वाला भी इस सिनर्जिड में आएगा, ठीक? यहां पे बेटे हैं पोलर न्यूक्लियाई, और फिर यहां से कनेक्टेड है ऐसे करके एंटीपोडल्स, ठीक? अब होगा ये बेटे, अब ये होता है कि जब ये पोलन ट्यूब आएगा, आई मीन पोलन जो गैमेट्स हैं इसमें, एक किस में आ जाएंगे, सिनर्जिड्स में, यानी ऐसा है सिनर्जिड्स की ये सेल्स है तीन, ठीक? ये मानो कि आई मीन एग सेल, यानी ऐसा केस है, ठीक? Right? Are you understanding what I'm saying? So what I'm saying is that कि जब पोलन ट्यूब जो है ये गैमेट्स रिलीज करेगा, क्या करेगा, ये गैमेट रिलीज करेगा, और वो गैमेट को डाल देगा, ये इनमें फिलिफॉर्म एपर्टस होते हैं, बोल दिया था हमने, फिलिफॉर्म एपर्टस के थ्रू इन ये जो मेल गैमेट्स है ये आके किस में आ जाएंगे, they will come inside this synergid. यानी this case will be like this, one is this and one is this, ठीक? अब आके क्या होगा, एक मेल गैमेट जो है वो आके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, इजंट इट सो? और दूसरा क्या है, वो आके सीधे आई मीन पोलर न्यूक्लियाई जो यहां पे है वो उनके साथ फ्यूज करेगा, यानी ये केस बनता है कि ये मेल गैमेट आके इसके साथ सिनर्जिड में दोनों ही आएंगे, और वहां से मूव होके एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जुड़ जाएगा, और एक मेल गैमेट बेटे किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ आएगा, ठीक? एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. हमने कहा था कि ऑल द इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन till the entry of pollen tube inside ovule or release of gametes inside our embryo sac is called as pollen pistil interaction. अब release gametes हुए यहां अंदर, यहां तक हम कहलाते हैं, I mean this constitutes what is called as pollen pistil interaction. अब ये हैं बेटे कि जो दो मेल गैमेट्स हमारे पास है, वो दो मेल गैमेट्स ने आके, एक ने ये मानो कि इसमें दो मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, I mean if I wrap this thing, अगर यहां पे एक मेल गैमेट है और इसके पास एक और मेल गैमेट है, और यहां पे मैं बस अभी डालता हूं एम्ब्रियो सैक, ठीक? एम्ब्रियो सैक, right? These are the three cells that we have discussed. This is the pollen nuclei, right? I say that these two male gametes will come into one of these two things, right? It will come inside this synergid, say for example 1 and 2, out of which you will see that one will come and fuse with this, which is this egg cell, and another will come and this will fuse with this thing. So basically what is happening, this is one fertilization, this is second fertilization. So if the fertilization is occurring two times, our topic will be then what I call as pollen, I mean double fertilization. By that I mean we are discussing now double fertilization. Double fertilization में बेटे क्या होता है, एक तो जो मेल गैमेट है वो आके फ्यूज होगा एग सेल के साथ, यानी मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा, और अगर एग सेल के साथ फ्यूज होगा, what will be the end product of it? Yes, we will be having what I call as zygote, और ये zygote बेटे डिप्लॉइड होगा,
और इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम नाम देंगे, यस, दिस इज कॉल्ड एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, generative fertilization, right? Or you call this as syngamy as well, right? I said that one male gamete जो ये है, ये एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया, एक मेल गैमेट ने किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो यहां पे था 2n और पोलर न्यूक्लियस जो थे उनके साथ किया। और दूसरा वाला केस है कि मेल गैमेट जो था, नेक्स्ट मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, उसने किसके साथ फ्यूज किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। उस तरह की फर्टिलाइजेशन को बेटे हम नाम देते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और यू कॉल इट एज ट्रिपल फ्यूजन एज वेल। Or what will be the end product of it, that is called as endosperm, isn't endosperm cell, endosperm cell, which is triploid in nature, right? Because we are having, this is n, secondary nucleus is already double 2n, and when they get fused they will give rise to this triploid cell which is called as endospermic cell. Later on, these two things have happened now. So how many fertilizations have took place? So two fertilizations. One is generative fertilization, second is vegetative fertilization, isn't? So this is called as double fertilization. बेटे अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताएं डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 3 4 5, हाउ, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 3 4 5, what will be your answer? Please check it. डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरे को यही बताओ। I'll check it this. Yes, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने होते हैं? I mean, एक तो दो मेल gametes और egg cell. So the right answer would be 3, isn't? So what we have male gamete plus a secondary nucleus. It gives us, I mean, a male and egg cell gives zygote, and then male gamete plus secondary nucleus gives, I mean, pen, primary endosperm and nucleus, isn't? It's PEN, sorry. Right? Later on, जब इसका डिवीजन फिर होगा, further division of this zygote, बेटे यहां पे इसको मैं रब कर लेता हूं, बेटे इसका जो फर्दर डिवीजन, इसकी फर्दर माइटोसिस से, जब इसकी माइटोसिस होगी बच्चे, इसकी माइटोसिस से बेटे एम्ब्रियो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मुझे मिलेगा। और बच्चे जब इस वाले पेन, आई मीन PEN जो कि ट्रिप्लॉइड है, जब ये माइटोसिस करेगा तो बेटे एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म टिश्यू, राइट? दिस एम्ब्रियो हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस zygote and this endosperm which is the nutritive tissue, it gets developed from PEN, right? It was discovered by Nowotny. ये डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? नोवोट्नी, right? So this is something called as double fertilization. So pollen pistil interaction में हमने ये देखा, मेल गैमेट्स अंदर हो गए एम्ब्रियो सैक में, और वहां पे उन्होंने क्या किया, एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया किसके साथ, एग सेल के साथ। बेटे एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया और दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया। मैं यहां पे शो करता हूं इसको, हाँ, ये एक मेल गैमेट जो है ये बेटे आके इसके साथ फ्यूज करता है, और दूसरा ये मेल गैमेट है ये आके इसके साथ फ्यूज करता है। बेटे ये वाले फ्यूजन को हम नाम देते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, और इस वाले फर्टिलाइजेशन को बच्चे हम नाम देते हैं यस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, राइट? सो नेक्स्ट, yes, so we saw that double fertilization is complete. So we have discussed pre-fertilization, and then I mean what
double fertilization as well. In the next lecture, we'll be discussing about पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, कि जो हमने कहा एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई, कैसे बना ये एम्ब्रियो, और बाद में हम देखेंगे कि जो पी एन जो है यहाँ पे इससे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या एंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं. ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.